Welcome back for today's session, kids. This is Harshi, your science mentor. Today we are starting with chapter number 1, which is crop production and management. Right? So management of crops and the various factors, how the crops are getting produced, what all conditions are required, we would be discussing in this chapter. So let's begin with the chapter. Warm up. What do you like to have in lunch or dinner? Perhaps you like rice, breads, vegetable pulses. So जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे मॉर्निंग मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, राइट. सो ये सब कैसे हम तक पहुंचता है? जब हम इसको ग्रो करते हैं. सो कौन ग्रो करता है? फार्मर्स. So farmers are growing the crops and after harvesting उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? गोडाउन्स में, और गोडाउन से ट्रांसपोर्ट होती है और कहाँ आती है? होलसेलर्स के पास. होलसेलर्स होते हैं जो बल्क में परचेज करते हैं, राइट. सो होलसेलर के पास आता है एंड देन इट विल मूव टू दी रिटेलर्स, और फ्रॉम रिटेलर्स वी बाय द food, right? No, means raw food, right? So next is food producers to food gatherer. When the early man came into existence, he was a food gatherer. Gatherer means human beings क्या है? Human beings consumers हैं. We are the consumers, right? And plants are the producers. So ह्यूमन्स क्या करते हैं? गैदर करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं. सो ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ एंड फेड ऑन एनिमल्स, वाइल्ड फ्रूट्स. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर डेवलप्ड लॉन्ग अगो. सो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जब इतना डेवलप नहीं था ह्यूमन बीइंग, तो क्या था? हम लोग फूड कलेक्ट करते थे. तो पहले लोग क्या करते थे? पहले के लोग हंटिंग करते थे और जो भी थोड़े बहुत फ्रूट्स उसमें होते थे फॉरेस्ट में, उनको प्लक करते थे और उनको खाते थे. सो इसीलिए उनको गैदरर्स बोला जाता है. और बाकी की जो प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस? इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन, इन सब के बारे में, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट ये सब बहुत बाद में स्टार्ट हुआ. वर डेवलप्ड लॉन्ग अगो बट have made great strides in the past century. The history of agriculture has played a major role in human history, as agricultural progress has been a crucial factor in worldwide social economic चेंज, राइट. सो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, धीरे धीरे हमने क्रॉप रोटेशन और इरिगेशन और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ और क्रॉप्स अब ग्रो होती हैं और हम उनको मार्केट से परचेज करते हैं, राइट. सो division of labor in agricultural societies made commonplace specialization rarely seen in hunter-gatherer culture. So hunters क्या थे? पहले लोग क्या थे? hunters. hunter थे, hunt करते थे animals को. So hunters and gatherers. और अब हम क्या करते हैं? अब हम crops को grow करते हैं. So when farmers became capable of producing food beyond the needs of their own families, others in their society, they were free to devote themselves to projects other than food acquisition. Historians and anthropologists. Anthropologists होते हैं जो humans के बारे में स्टडी करते हैं, और historians जो history के बारे में स्टडी करते हैं. So have long argued that development of agriculture made civilization possible. So agriculture का भी एक बहुत important रोल है हमारे civilization में. So we will see how it is being done, what all steps are included in this. Next is human dependence on plant and animals for food. So from where do we get our food?
राइट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड, राइट, वी आर कुकिंग द फूड. हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम कुक करते हैं, राइट. और फूड हमें कहाँ से मिलता है? ईदर वी आर गेटिंग द फूड फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम plants, right? So our food items are either plant products such as grains, vegetables, fruits, right? Fruits, vegetable, grains, cereal, pulses, oil seeds, spices. तो ये सब हम कहाँ से हमें मिलता है? Plants से. And animal products such as milk, egg, mutton, chicken, etc. we get it from animals. So we eat various parts of the plant as food. For example, rice, wheat. So ये corn, ये सब क्या है? ये grains हैं. और कुछ हम leaves खाते हैं, किसी की हम stem खाते हैं, किसी की हम roots खाते हैं, ठीक है. So इसलिए इस तरीके से हम plants के different parts को consume करते हैं. So thus human beings depends on plants and animals for food. All living things require food to stay alive. So हम इस chapter को क्यों पढ़ रहे हैं? What is the necessity? Why we are reading this chapter? Because food is very important for survival. Food के बिना हम survive नहीं कर सकते हैं. So you have already learned that plants and animals are the two main sources of food. So main sources क्या हैं food के लिए? Humans के लिए plants and animals. Animals are domesticated and raised to obtain food from them. तो हम क्या करते हैं? हम animals को domesticate करते हैं, उनको हम अपने पास रखते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनको domesticate करते हैं. And raised to obtain food from them, right? Different types of plants give us different types of food to fulfill our needs. Each of these plants is grown on a large scale. The cultivation of plants on farms, this is called farming, right? So farming क्या हुआ? हम जो भी कल्टिवेट करते हैं, जो भी चीज़ें हम उगाते हैं, कहाँ? फार्म में, यानी कि बड़े लैंड पर हम जो भी उगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फार्मिंग. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. सो फार्मिंग और एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? फार्मिंग इज that we are cultivating the crops, right? And agriculture में farming included है, farming and livestock rearing. Livestock rearing क्या होता है? Livestock rearing means animals को domesticate करना. So agriculture is the largest occupation in our country. आज भी हमारी कंट्री में 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग करती है, या एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर क्या है? अभी हमने डिफरेंस समझा. फार्मिंग क्या है, एग्रीकल्चर क्या है. फार्मिंग एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. फार्मिंग मीन्स क्रॉप्स को ग्रो करना, कल्टिवेट करना, और एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी आता है. एंड नेक्स्ट इज लाइवस्टॉक रेयरिंग. सो दोनों को मिक्स करके बनता है एग्रीकल्चर. सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद फूड प्रोडक्शन मेथड्स आर नोन एज agriculture. So besides studying the new methods of food production in this branch of science, we also study how new and better varieties of crops can be grown, right? So जो साइंटिस्ट हैं वो कंटिन्यूस इस पे वर्क करते हैं, किस तरीके से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए. न्यू स्टडीज होती हैं ताकि क्या होता है, डिफरेंट फूड आइटम्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, बेटर प्रोडक्शन हो. जो अभी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं उससे बेटर क्रॉप्स ग्रो हो, तो बहुत सारे डेवलपमेंट चलते रहते हैं. हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक काउ, हेन्स एटसेट्रा कैन बी रेयर्ड वेल एंड मेड टू गिव मोर मिल्क फॉर बेटर क्वालिटी एग्स. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स के केस में स्टडीज होती है, एनिमल्स के केस में भी स्टडीज होती है. मीन्स ऑल टुगेदर एग्रीकल्चर ब्रांच में
डेवलपमेंट होता रहता है, स्टडीज होती रहती है सो दैट क्वालिटी इंप्रूव की जा सके और बेटर क्वालिटी फूड हमें प्रोवाइड हो सके। All these new methods which scientists develop come under agriculture practices. So इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, न्यू टूल्स डेवलप हो रहे हैं, सीड्स में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है। So we need vegetable, fruits, cereals, pulses, etc. as food. For our clothes, we need the fiber of plants or animals, right? तो हम क्या करते हैं, हमें जो क्लॉथ्स भी चाहिए, क्लॉथ्स हमें क्या करते हैं, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर हमें या तो एनिमल से मिलता है, जैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, जूट मिलता है हमें प्लांट से, जो कॉटन मिलता है हमें प्लांट से, तो हमें फाइबर भी कहाँ से मिलता है, एनिमल्स एंड प्लांट से मिलता है। We get all these foods and fibers from farming or agriculture. So let's move ahead. Project, we have an activity here. So यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनानी है, जो हम उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, इसमें फर्स्ट में हमने उनको कैटेगराइज करा है। जो भी आइटम्स हम बात कर रहे हैं उनको हमने यहाँ कैटेगरी में डिवाइड किया गया फूड आइटम्स को, या वो मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, हम रूट्स खाते हैं सो उनको रूट क्रॉप्स में मेंशन किया है, ट्यूबर्स खाते हैं सो इट्स ट्यूबर क्रॉप्स, देन शुगर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। सो प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, तो ये सब कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम मार्केट में सेल करते हैं। और शुगर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, बीट रूट, सो पल्सेस, ऑयल सीड्स, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच वी हैव केप्ट दीज आइटम्स, जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सिमिलरली आप अपनी डे टू डे लाइफ से बहुत सारी चीज़ें लीजिए एंड देन try to place them in these categories, right? So let's move ahead to the next topic which is crop production. So अब हम बात करेंगे crop कैसे produce होती है, जो हम खाते हैं लाइक wheat खाते हैं, हम rice खाते हैं, हम pulses खाते हैं, वो grow कैसे होती हैं, so वो step by step we are studying here. So first or main topic is crop production. So when the same type of plant is grown throughout a field, it is called a crop. Now let's understand two terminologies. एक है crop, एक होता है gardening, right? So अगर हम एक plant, let's say mango tree मैंने grow किया, so I have a mango tree at my home, right? जो एक मैंगो ट्री है मेरे पास, एक लेट्स से मैंने कुछ टोमेटोज भी ग्रो किए हुए हैं, कुछ अनियंस भी ग्रो किए हुए हैं, राइट। तो क्या ये क्रॉप है, क्या ये फार्मिंग है? नो, इट इज सिंपल गार्डनिंग। क्योंकि क्या डिफरेंस है क्रॉप एंड फार्मिंग में? डिफरेंस ये है कि जब हम सेम टाइप ऑफ प्लांट्स एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड गार्डनिंग। सो द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूस, राइट। अब अगर मैंने मैंगो ट्री लगाया है, उसको ग्रो किया है और उसमें से मैंगो मैं तोड़ती हूँ और मैं उसको यूज करती हूँ, तो वो मैंगो क्या है? मैंगो इज अ product, right? And it is called produce. जो हम plants cultivate करते हैं, उनको grow करते हैं, farming करते हैं, और फिर जो final चीज़ या product हमें मिलता है उसको हम कहते हैं produce. The crops have been classified into different types on the basis of their uses by human beings. अब कितनी categories में हम उनको define कर सकते हैं? In a plant, some parts are useful and important to human beings. पार्ट का प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हम खाते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, राइट। सो प्लांट्स आर ग्रोन फॉर स्टेबल फूड, एग्जाम्पल वीट, sorghum, etc. There are some plants that are grown for financial benefits. Financial benefits means हम उनको मार्केट में सेल करते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट जिनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, राइट। सो कैश क्रॉप्स हैं,
इसके अलावा हम देखते हैं हम सीरियल्स ग्रो करते हैं, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज एटसेट्रा, पैडी। फ्रूट्स क्या है? मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, पाइन एप्पल, स्लॉट मनी फ्रूट्स आर देयर। बेवरेजेस में टी, कॉफी, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स. Next is vegetables like potato, brinjal, mustard, onion. So many examples are there. Beans. Next is fibers. So we also obtain fiber from the plants such as jute, cotton, hemp, etc. और animal से कौन सा fiber मिलता है हमें? Silk. We obtain silk from the silk worm. Crops can be classified either on the basis of products obtained on or on the basis of the season which we grow, right? ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी भी सीजन में कोई भी क्रॉप ग्रो कर ले. फर्स्ट हमें आर वी ऑल क्लियर अबाउट द क्रॉप एंड फार्मिंग और द गार्डनिंग? अगर हम कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री सिंगल 1 2 3 मतलब इन अ स्मॉल नंबर्स, स्मॉल क्वांटिटीज अगर हम ग्रो करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल गार्डनिंग. बट अगर सेम टाइप के प्लांट्स और ट्रीज हम ह्यूज क्वांटिटी में एक बड़े लैंड एरिया में ग्रो करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्रॉप. और इनसे जो हमें मिलता है, जो ग्रो होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूस. जैसे मैंगो ट्री ऑब्वियसली हमें मैंगो देगा, सो मैंगो इज अ प्रोड्यूस. एप्पल ट्री हमें एप्पल देगा, सो एप्पल इज अ प्रोड्यूस. सो क्रॉप्स भी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन. ये हमने कैटेगरी बनाई है जिनको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट आर फेमिलियर विद दीज क्रॉप्स. सो राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स 2 तरीके की क्रॉप्स होती है जो सीजन बेस्ड होती हैं, राइट? सो दे इंक्लूड क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा. इन ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? राबी क्रॉप्स के. और राबी क्रॉप्स हम कब ग्रो करते हैं? वी ग्रो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वी हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च. और अक्टूबर टू मार्च यानी कि राबी क्रॉप्स को हम इनको राबी क्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मॉनसून बिकॉज ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दीज क्रॉप्स इज लेस. ये इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से वी ग्रो देम इनटू द मंथ ऑफ अक्टूबर. हम उनको लगाते हैं, कल्टिवेट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. सो वी कॉल इट राबी क्रॉप्स. नेक्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स. सो खारिफ क्रॉप्स में वो क्रॉप्स ग्रो होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राइट? सो दे इंक्लूड क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. तो ये कब हम ग्रो करते हैं? जून मंथ में ग्रो की जाती हैं और इनको सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है क्योंकि ये रेनी सीजन होता है. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्टर्न monsoon. These crops require plenty of water and largely depend on monsoon rains क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए? वाटर चाहिए. सो इसीलिए हम इनको मॉनसून सीजन में ग्रो करते हैं और सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं बिकॉज अक्टूबर में तो राबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, राइट? सो next is basic agriculture practices. Now from here we are starting the new topic which is practices, basic agriculture practices. अभी हमने क्या पढ़ा? क्रॉप्स क्या होती हैं, फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स. नाउ फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग कि हम क्रॉप्स को ग्रो कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. द डिफरेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. क्या बोलते हैं हम इनको? एग्रीकल्चर practices. The activities do vary for different crops, but some of the practices that are common for all the
क्रॉप्स। तो ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए यही स्टेप्स फॉलो होते हैं, बट कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं जिसमें कोई स्टेप ज़्यादा हो सकता है, कोई स्टेप कम हो सकता है, बट मेनली हम ये मेथड फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं ये? सो इंक्लूड टिलिंग। टिलिंग होता है प्लो करना फील्ड को, यानी कि सॉइल को शफल करना, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है, सो दिस इज कॉल्ड टिलिंग। हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स, राइट, पानी देना क्रॉप्स में। वीडिंग, वीडिंग आर, वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, बट उन अनवांटेड प्लांट्स को हमें रिमूव करना होता है। एंड हार्वेस्टिंग, एंड फाइनली जब क्रॉप ग्रो हो जाती है तो हम क्रॉप को क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद स्टेप आता है थ्रेशिंग, विनोइंग एंड फाइनली स्टोरिंग, क्योंकि इन ग्रेन्स को हमें स्टोर भी तो करना है, वरना वो खराब हो जाएंगे। सो द वेरिएशन इन प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इज बेस्ड ऑन द क्रॉप टाइप and useful product it is grown for. The different crops vary as some are grown for grains while others are grown for leaves, fruits and seeds. So fruits के केस में अलग कुछ स्टेप, कुछ एक या दो स्टेप अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाकी कॉमन स्टेप्स यही हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सॉइल में जाकर सीड्स लगा दीजिए, ग्रो कर दीजिए, सो कर दीजिए और आपको प्लांट्स या आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो होना जाएगी। सो ऐसा नहीं होता, हमें सॉइल को भी प्रिपेयर करना होता है। ये भी हम सब डिटेल में कवर करेंगे इस चैप्टर में। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, आफ्टर दैट वी आर सोइंग द सीड्स इनटू इट। सो सोइंग के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब सीड सो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए। जब एक बेबी छोटा होता है, जब वो बॉर्न होता है, वो ग्रो कैसे करता है? उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इनको भी सीड्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और दैट न्यूट्रिशन सीड्स आर गेटिंग फ्रॉम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? वाटर। वाटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वीडिंग। वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप करना। एंड आफ्टर दैट व्हेन क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, क्रॉप्स ग्रो हो गई हैं, सो उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना इज द नेक्स्ट प्रोसेस। देन ग्रेन्स को सेपरेट करना, थ्रेशिंग। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स और सीड्स या लीव्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं मेथड में, लाइक थ्रेशिंग। थ्रेशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में नहीं होती है, क्योंकि हम उनको प्लक करते हैं, राइट। थ्रेशिंग होती है पल्सेस के केस में, थ्रेशिंग होती है राइस, सीरियल्स यानी व्हीट के केस में, जिसमें हम स्किन, जिसमें ग्रेन्स सेफ होते हैं, उस स्किन से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। उसके बाद एक प्रोसेस विनोइंग का भी होता है, एंड फाइनली वी स्टोर द ग्रेन्स इनटू ग्रेनरीज। सो ग्रेनरीज में हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन। कैसे प्रिपेयर करेंगे? Soil is made up of small particles of different size. So जो soil होती है, जो मिट्टी होती है, we have studied in the junior classes कैसे बनती है, soil कैसे बनती है, जो हमारे डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे स्टोन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, या जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये ब्रेक डाउन होते जाते हैं एंड स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होता है। सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट्स आर डीकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और सॉइल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स है या डेड एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट्स ये सब जो मर जाते हैं, वो कहाँ डिकम्पोज, वो कहाँ आएंगे, सॉइल में आएंगे। अब सॉइल में जो माइक्रो डीकम्पोजर्स हैं, वो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं
स्मॉल पार्टिकल्स में, और फिर वो क्या होती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है और ये मैन्योर फॉर्म होता है विच इज वेरी न्यूट्रिएंट एंड गुड फॉर crops. So this decomposition process releases various nutrients into the soil. So अभी आपको पता चल गया होगा कि soil में nutrients कैसे ऐड होते हैं, क्योंकि decomposition का process होता है. जैसे plants भी dead होते रहते हैं, leaves dead हुई, वो क्या हुई, they are fallen down, नीचे गिर गई और धीरे 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 करके वो सड़ जाएंगी कुछ और दिन बाद, और ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डीकम्पोज कर देंगे. सिमिलरली एनिमल्स अगर मर जाते हैं, छोटे हों या बड़े हों या माइक्रो और मैक्रो कोई भी एनिमल हो, तो उनका भी डीकम्पोजिशन होता है. फूड आइटम्स जो सड़ जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जब सड़ जाते हैं तो क्या होता है, डीकम्पोजर्स जो होते हैं, हमारे फंगी होते हैं हमारे, और डीकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको स्मॉल या कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं और सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है. राइट. So these nutrients are absorbed by plants as they are important for the growth of plant. So thus the soil is essential for plant growth. और इसी fertile soil में फिर हम और plants grow करते हैं. So in addition to air, soil also contains various minerals, water, dead plants, animal parts and some लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो सॉइल के अंदर क्या क्या मिक्सड है, सॉइल के अंदर एयर है, सॉइल के अंदर वाटर है, सॉइल के अंदर डीकम्पोजिशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें मिक्सड हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं. सो ये सब चीज़ें सॉइल का पार्ट है. द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप. सो नाउ वी आर फैमिलियर कि सॉइल क्या होती है और सॉइल के अंदर सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. सॉइल कैसे बनती है वो सब हम SST में पढ़ चुके हैं, सोशल स्टडीज़ में, कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या उससे भी ज़्यादा टाइम में जब जो बड़े माउंटेन्स होते हैं वो उनके पार्ट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बोल्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो नीचे रोल ऑन करते हैं और आपस में रब होते हैं और फिर और छोटे हो जाते हैं और साइज़ में छोटे जाते हैं, पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आपस में रब होते हैं और फिर से और स्मॉलर पार्ट्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और फाइनली सॉइल बनती है. उस सॉइल में प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डीकम्पोज होके होते हैं तो वो भी उसमें मिक्स होते हैं. सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप. अगर हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, तो हमारी कल्टीवेशन यानी क्रॉप्स जो उसके अंदर ग्रो होंगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी. दिस इंक्लूड्स मेथड लाइक प्लोइंग को हिंदी में बोलते हैं खेत को जोतना. सो प्लो करना खेत को. प्लोइंग में क्या होता है, क्या होती है, जो मिट्टी होती है वो शफल हो जाती है. शफल मीन्स जो नीचे की न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो शफल हो जाती है मिट्टी. प्लोइंग इज टिलिंग इज द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मिट्टी होती है वो अपसाइड डाउन हो जाती है. एंड द लैंड विद द हेल्प ऑफ प्लो इट टर्न्स सॉइल अपसाइड डाउन एंड सो ऑन. सो टिलिंग होती है. टिलिंग मीन्स प्लो करके हम टिलिंग ऑफ सॉइल होता है, जिससे एक तो एयरी हो जाती है, सॉइल के अंदर एयर पास ऑन हो जाती है. एयर जाने से क्या होता है, वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी. मॉइस्चर होल्ड करना मतलब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है और रूट्स को अच्छे से एयर एंड वाटर मिलता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड. डू यू नो व्हाई? अर्थवॉर्म हमको क्या बोलते हैं, फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं. क्यों?
क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, नीचे क्या करते हैं, डिग करते जाते हैं, बरो बना देते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर घुसते जाते हैं और मिट्टी में क्या होती है, जगह बन जाती है। और जब जगह बन जाएगी, होल्स बना देते हैं नीचे और नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो शफल होती रहती है, उसमें टिलिंग नेचुरल प्रोसेस से होती रहती है और सॉइल क्या होती है, एयरी बनती रहती है। सो दिस हेल्प्स टू लूजन द सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द physical structure of the soil and creates channels for the roots of plants to penetrate। और जब soil क्या होगी, लूज होगी तो यानी कि उसके अंदर एयर होगी तो मॉइस्चर अच्छा होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और उसमें क्या होता है, रूट्स बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर चली जाती है कंपैरेटिवली। अगर सीड किसी बहुत हार्ड सॉइल में ग्रो किया जाए, उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है सीड्स की। सो दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। कौन करते हैं हेल्प, अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन करते हैं और सॉइल को लूज करते रहते हैं, तो क्या बनता रहता है, ह्यूमस बनता रहता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लोइंग, क्या ज़रूरत है प्लोइंग की, क्योंकि हम बहुत सारे बेनिफिट्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल, हेंस इट इम्प्रूव्स द एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल। सो अगर सॉइल लूज हो जाएगी तो क्या होगा, इजीली एयर सर्कुलेट होगी, इट हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। और अगर एयर लूज होगी तो पानी भी बहुत अच्छे से अंदर जाएगा। सो इट हेल्प्स इन अपरूटिंग वीड्स फ्रॉम द soil. This is important thing. Weed, as I already told you, these are unwanted plants और unwanted plants की growth को stop करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ weeds ऐसे होते हैं जो poisonous होते हैं, जिनको खाना risky होता है। इसके अलावा जो weeds होते हैं वो space share करते हैं, वो nutrient share करते हैं crops का, जो हमें ज़रूरी है। प्लांट्स जब वो ग्रो करते हैं तो उनको जो भी पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सो वीड्स को भी वही सेम पानी, न्यूट्रिएंट्स और भी सब सनलाइट मिलती है, तो क्या होता है, नॉर्मल ये भी ग्रो करते हैं, तो हमारे लिए ये नुकसान वाले प्लांट्स हैं, तो इसलिए इनको हम वीड्स बोलते हैं और हमें इनको रिमूव करना ज़रूरी है। इट एनहांसेस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी टू द सॉइल, राइट, यही है, वाटर रिटेन होगा, वाटर रिटेन होने से मॉइस्चर रिटेन होगा कहाँ, सॉइल में, और प्लांट्स को बहुत इजीली वो ग्रोथ कर पाएंगे और रूट्स बहुत इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी। और अगर मॉइस्चर सॉइल है तो रूट्स क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। प्लोइंग फॉर्म्स बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्या होता है, जब हम प्लोइंग करते हैं तो उसमें सॉइल के बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस बन जाए, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पाउडरी सॉइल होती है। सो जब हम प्लो करते हैं तो कभी कभी पीसेस भी बनते हैं, उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। सो प्लोइंग इज फॉलोड बाय लेवलिंग। अभी हमने क्या करा, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टेप विच इज सॉइल प्रिपरेशन। अब हमने जब फील्ड को प्लो किया तो क्रम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप लेवलिंग होती है। द क्रम्स फॉर्म ड्यूरिंग प्लोइंग आर ब्रोकन बाय द वुडन प्लैंक। ये देखो ट्रैक्टर के साथ एक वुडन प्लैंक अटैच है, ये क्या करता है, जब ट्रैक्टर चलता है तो वुडन प्लैंक इन क्रम्स को ब्रेक करता जाता है और ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन लेवलर और अ वुडन प्लैंक अटैच टू अ ट्रैक्टर। सो फील्ड्स मस्ट बी लेवल्ड प्रॉपरली बिफोर सोइंग एंड इरिगेशन। सो अब क्या होगा, क्रम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और एक प्रॉपर लेवल बन जाएगा। इतने क्रम्स में सीड्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ वी हैव अ एक्टिविटी, टेक 2 प्लास्टिक ट्रेज फिल्ड विद सॉइल। हमने 2 ट्रे ली, उसके अंदर हमने सॉइल उस ट्रे में रख दी, ठीक है। सो स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द सॉइल ऑफ बोथ द ट्रेज एंड लीव देम आउट इन द सन फॉर डे और 2। 1-2 दिन के लिए उस ट्रे, मिट्टी जिसमें है उस ट्रे को हम कहाँ रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे और उनको 1-2 दिन वहीं रहने देंगे। प्लो द सॉइल ऑफ 1 ट्रे और ओवरटर्निंग द सॉइल विद अ शार्प ऑब्जेक्ट।
एक ट्रे की सॉइल को हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास शार्प ऑब्जेक्ट होगा उससे, स्पून की हेल्प से या कुछ और जो भी हमारे पास कुछ शार्प है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, टर्न कर देंगे उस सॉइल को एंड लीव द अदर ट्रे अनअटेंडेड। और एक, क्योंकि हमने 2 ट्रेज लिए हैं, एक ट्रे, दोनों ट्रेज में सॉइल क्या है, उसमें सॉइल फिल की हुई है, उसमें थोड़ा सा हमने वाटर स्प्रिंकल किया, उसको 2-3 डेज के लिए हमने सनलाइट में छोड़ दिया। अब एक ट्रे में तो हमने क्या करा, जो उसमें सॉइल थी उसको शफल किया यानी किसी शार्प चीज़ की हेल्प से, और दूसरी ट्रे में उसको हमने छुआ नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। प्लांट 5 बीन सीड्स इन अ बोथ ट्रे, सो दोनों ट्रे में हमने 5-5 सीड्स डाल दिए, किसके, बीन्स के। सो प्लेस बोथ ट्रेज इन द सेम प्लेस, दोनों ट्रेज को हम एक ही जगह रख रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, हमने सीड्स डाले, दोनों में हमने सॉइल डाली, पानी भी डाल रहे हैं, दोनों को सनलाइट भी दे रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, एक की सॉइल को हमने प्लो कर दिया यानी शफल कर दिया और दूसरी को हमने टच भी नहीं किया। सो वाटर बोथ द ट्रेज विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डेली एंड एट अ फिक्स टाइम, सो दोनों ट्रेज में हमने पानी डालना है रोज। सो ऑब्जर्व इन विच ट्रे द सीड्स जर्मिनेट फर्स्ट एंड द सीडलिंग्स ऑफ विच ट्रे आर हेल्दियर। अब हम कुछ दिन बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी ट्री में सीड अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और कौन से जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। सो कैन यू डिफ्रेंशिएट? ऑब्वियसली वो प्लांट्स जल्दी ग्रो करेंगे या वो सीड जल्दी जर्मिनेट होंगे जिस सॉइल को हमने प्लोइंग यानी कि टिलिंग कर दिया, शफल कर दिया नीचे की ऊपर से, ताकि सॉइल क्या हो जाए, एयरी हो जाए, मॉइस्चर रिटेन कर पाए और रूट्स डेवलप हो पाए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब हम सॉइल प्रिपरेशन या करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है या हार्वेस्ट करने के लिए, और सब प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आजकल टूल्स ज़रूरी हैं उनके लिए। सो दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल implements. So farmer needs some special tools to grow a good crop. The tools used of farmers during farming, these are called agricultural implements. Some of the implements जैसे कि plowing के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, plow, ये plow है। So plow are being used since ancient time, ये पुराना एक मेथड है, पहले टाइम से ही लोग क्या करते हैं, प्लो यूज करते हैं। पर्पस फॉर टिलिंग द सॉइल, राइट, सॉइल को नीचे वाली सॉइल को ऊपर लाने के लिए, टिलिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लो यूज करते हैं। अ प्लो इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, और ये क्या होता है, ये बड़ा होता है और क्या होता है, मैनुअल नहीं करते, इसको बुल्स के शोल्डर्स पे रखा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम प्लो शेयर बोलते हैं, ये आयरन का बना होता है, ये सॉइल के अंदर होता है और ये जैसे जैसे बुल आगे जाते जाते हैं और ये इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है और ये सॉइल को टर्न करता जाता है, ठीक है। सो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग शार्प आयरन स्ट्रिप विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, इसकी शेप कैसी है, ट्राइंगुलर, आगे से बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, शार्प है शेप, and it is known as plowshare. The main part of the tool is made up of long log of wood. ये किससे बना हुआ है, ये हिस्सा बना है वुड से, जिसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। Plow shaft. At one end of the shaft there is a handle, while at the other end is a beam is attached. तो ये beam इसके साथ attached है. So this is placed on the neck of the bull, और ये वाला हिस्सा मिट्टी में रहता है और हम प्लोइंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हो। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है हो। ये हो की पिक्चर है। A hoe is a tool which is used to remove weeds from the soil and loosen the soil. तो ये weed को remove करने के लिए काम आता है। It is made up of long handle of wood और iron. तो इसका ये rod है, ये लंबा सा, और ये इसका हैंडल है, और ये किससे बना हुआ होता है, या तो वुड का बना हुआ होता है या फिर आयरन का बना हुआ होता है। इट हैज़ अ बेंट प्लेट और आयरन फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो ये है बेंट
प्लेट, ये प्लेट इसके साथ फिक्स होती है। सो वो किस लिए काम आता है? वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज कल्टीवेटर। So plowing is also done using a tractor driven cultivator. So ये cultivator है, इसको ट्रैक्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। जो हमने अभी देखा था प्लो के थ्रू, वो मैनुअल तरीका है, यानी ट्रेडिशनल मेथड है। इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड मैन पावर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। लोगों को काम करना पड़ता है, बुल्स हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है बहुत टाइम टेकिंग है उसका। अब इजी मेथड है कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, विच सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर। अ कल्टीवेटर इज अ टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर सेकेंडरी टिलेज, यानी कि ये भी सॉइल को टिल करने के काम आता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग टेक्निक्स। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, क्या? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में क्या है? वीड को रिमूव करना, सॉइल को टिल करना, ताकि नीचे की अच्छी सॉइल जो होती है वो मिक्स हो जाए। लेवलिंग करते हैं लेवलर की हेल्प से, ताकि जो बड़े बड़े क्रम्प्स बन गए हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है सीड्स को सो करना। सो टू ऑब्टेन हायर क्रॉप यील्ड्स, हेल्दी सीड्स मस्ट बी सोन। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वालिटी का सीड उसमें डाल दिया, अच्छी क्वालिटी की सीड्स अगर हम सो करेंगे तो अच्छी क्रॉप्स ग्रो होंगी। सो सोइंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, मिलेट एटसेट्रा आर ग्रोन बाय sowing seeds. So healthy seeds are selecting for sowing. अब क्या मेथड है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सीड हेल्दी है या नहीं? फर्स्ट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हेल्दी सीड्स हम परचेज करेंगे। सो उनको भी हम फर्दर एक मेथड है जिसके थ्रू वी कैन चेक दैट दीज सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। जो अच्छे सीड्स हैं उनको हम सो कर देंगे, जो सीड्स खराब हैं उनको हम अलग कर देंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है? इस तरह से हमने एक बीकर लिया, किसी भी चीज़ में हम पानी भर देंगे, पानी भर के उसके अंदर हम सीड्स डाल देंगे। सो सीड्स उसको डाल के उसको स्टर कर देंगे और जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, कुछ आवर्स के लिए इसको छोड़ दो। और 1-2 घंटे बाद जब हम देखेंगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कुछ टाइम के बाद जो गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे वो कहाँ होंगे? वो सेटल डाउन हो जाएंगे पानी के अंदर, और जो बैड क्वालिटीज़ के सीड होंगे या डैमेज सीड्स होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। उनको हम सेपरेट कर लेंगे और हेल्दी सीड्स को हम क्या करेंगे? फील्ड्स में सो कर देंगे। डू यू नो हाउ सीड्स आर सोन इन अ लार्ज एग्रीकल्चर फील्ड्स? अब सीड्स को सो करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ये है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें क्या होता है कि हाथ से ऐसे थ्रो किए जाते हैं सीड्स फील्ड में। और क्या होता है, कहीं कहीं पर बहुत सारे सीड्स इकट्ठे आ जाते हैं, कहीं पर कम आते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज और है, क्योंकि ये सीड्स सॉइल के अंदर नहीं होते हैं, सॉइल के ऊपर होते हैं, तो बर्ड्स इनको ईजिली खा जाती हैं, तो बहुत सारे सीड डैमेज हो जाते हैं। कहीं कहीं पर तो पास बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, राइट। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ सोइंग सीड्स इंक्लूड द यूज ऑफ फनल शेप्ड tool. Seeds are to be sown are filled with the funnel and are passed through 1 or 2 or 3 pipes having sharp ends. So the end of these pipes pierce through the soil and sow the seeds in the soil. तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है? एक तो ये हैंड से हम स्प्रिंकल करते हैं फील्ड में, पहले हमने सॉइल प्रिपेयर कर दी और फिर हैंड से हमने उसको स्प्रिंकल कर दिया। सेकेंड एक है कि एक फनल शेप होता है, उस फनल के अंदर हमने सीड्स डाल दिए और एक पाइप के थ्रू वो क्या होता है, जब हम प्लोइंग करते हैं फील्ड की तभी वो सीड क्या होते हैं, नीचे 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 साथ में सॉइल में आ जाते हैं। तो सॉइल ये उससे थोड़ा बेटर मेथड था, लेकिन है ओल्ड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब न्यू मेथड्स जो आए हैं दैट इज सीड ड्रिल्स। सो दिस इज ऑटोमेटिक डिवाइस विच सोज सीड एट एन इक्वल डेप्थ, बराबर डेप्थ और डिस्टेंस पर सीड ग्रो होते हैं। तो इससे सीड वेस्टेज कम होता है, बहुत साथ साथ प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते हैं
और ये जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है. सो इट अलाउज सोइंग सीड्स एट एन एप्रोप्रिएट डेप्थ. एट अ डेप्थ कैन नॉट बी पिक्ड बाय द बर्ड्स, क्योंकि सॉइल के अंदर है सीड, एंड सोन इन प्रॉपर रोज रिजल्ट इन यूनिफॉर्म ग्रोथ. यहाँ पर अनइवन ग्रोथ होती है, क्योंकि कहीं पर पास बहुत सारे सीड्स गिर गए और बहुत सारे सीड्स कल्टीवेट हो गए और बहुत सारे सीड डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्यों? बिकॉज वो सारे सीड सॉइल के ऊपर होते हैं. बट यहाँ पर वो नहीं होता है, यहाँ पर इवन ग्रोथ होती है, क्योंकि डेप्थ में होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, सो बर्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, और डिस्टेंस होता है. सो क्या कैसी क्रॉप्स ग्रो होगी? जितनी दूरी पर सीड्स होंगे, सो प्रॉपर ग्रोथ जो होती है क्रॉप्स की होती है. एंड रिड्यूस ओवरक्राउडिंग मीन्स पास प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं. सो देयर बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट टू ऑल द प्लांट्स. अगर प्रॉपर गैप होगा, बीच में स्पेस होगा, तो प्लांट्स को क्या होगा? वाटर इजीली मिल पाएगा, सनलाइट मिल पाएगी, एयर मिल पाएगी, और यही एक छोटी सी जगह में बहुत सारे सीड अगर एकदम ग्रो कर जाएं, तो सारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन शेयर करना पड़ेगा, तो प्रॉपर ग्रोथ किसी भी प्लांट की नहीं हो पाती है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड. और इसको हम करते हैं सीड ड्रिल की हेल्प से. इसको हम ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं. ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक, ये देख रहे हैं, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर अटैच्ड विद दिस, और ये आगे से बहुत ज़्यादा शार्प एंड पॉइंटेड है. और जैसे ही ट्रैक्टर हम चलाते हैं, सॉइल में प्लोइंग होती है और साथ साथ सीड उसके अंदर जाते रहते हैं सॉइल में. So do you know Green Revolution? It is a program stated in the 1960s to increase agriculture productivity. Agriculture productivity बढ़ाने के लिए 1960 में एक Green Revolution का स्टार्ट किया गया था through the use of imposed seeds and advanced agricultural techniques. क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था. नाउ क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, ये एक और मेथड है. अभी हमने एक मेथड पढ़ा सीड को सो करना, एक ट्रेडिशनल मेथड है कि आप हैंड्स में बहुत सारे सीड लें और ऐसे थ्रो कर दें. ठीक है. नेक्स्ट है जो आजकल यूज होता है, जिसमें हम सीड्स को क्या करते हैं, सॉइल के अंदर सीड ड्रिल की हेल्प से सॉइल के अंदर उनको सो करते हैं. आफ्टर दैट एक और मेथड है विच इज क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन. सो इन सम क्रॉप्स लाइक राइस को हम पैडी बोलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइस एंड पैडी? राइस एक कवर के अंदर होता है, राइस एक ग्रेन है, मतलब लाइक वो सीड जो है वो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है. अगर तो राइस उस कवरिंग के साथ है, दिस इज कॉल्ड पैडी, और अगर हमने उस स्किन को रिमूव कर दिया है, सो राइस को अलग कर दिया है, तो राइस उसको हम राइस बोलते हैं. एंड वेजिटेबल्स लाइक चिलीज एंड टोमेटोज, the seeds are sown in small areas called nursery. नर्सरी में पहले हम छोटे एरियाज में पहले हम सीड को सो करते हैं. उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब उसमें सीडलिंग्स निकलते हैं, अब हम उन छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होते हैं इनको कहाँ करते हैं, इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड्स में. ठीक है. इसमें तो वही प्लांट्स ट्रांसप्लांट हो पाते हैं जो सीड जर्मिनेट हो गए हैं, जो ग्रो कर रहे हैं. When they are germinated into small seedlings, these are transferred to the main field. So this is called crop transplantation. इसमें सीड हम कहाँ करेंगे? सीड हम नर्सरी में ग्रो करेंगे, और जब सीडलिंग्स यानी जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा, सीडलिंग्स ग्रो होंगे, और फिर हम उन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे फील्ड में. इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अब हमने सॉइल प्रिपरेशन कर ली, प्लोइंग कर ली, वीट को रिमूव कर दिया, सीड्स को क्या करा, सो कर दिया. अब हमें क्या ज़रूरत है? न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है ना सीड्स को, उनको भी तो फूड चाहिए, और वो कहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि सॉइल से लेंगे ऑब्वियस, और सॉइल में हमें क्या करना है? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट टू द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Sometimes farmers grow the same crop year after year in a field
this leads to the deficiency of a particular nutrient, let's say nitrogen, potassium, which is used up by the particular crop in that field. So thus farmer adds manures and fertilizers to replenish the soil. So बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी डिफिशियंसी हो जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड नहीं खाते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, सो वो न्यूट्रिएंट्स जिस फूड आइटम्स में मिलते हैं उस फूड आइटम्स को हमें ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है और हमारी बॉडी क्या करती है, रिप्लेनिश करती है उन न्यूट्रिएंट्स को। और यही काम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स करते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही तरीके की क्रॉप बार बार ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगी, सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन नहीं है या पोटेशियम नहीं है। सो इस डेफिशिएंसी को दूर किया जाता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब डिफरेंस क्या होता है, व्हाई वी आर यूजिंग दीज टू टर्म्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जबकि दोनों का काम एक ही है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो दोनों में डिफरेंस ये है, मैन्योर नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वेयर एज फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज, ये सिंथेटिक मैटर से केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो फर्टिलाइजर्स आर गिविंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हैं और इनफैक्ट वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। सो मैन्योरिंग क्या है, मैन्योर्स आर डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक होते हैं। सो दीज इंक्लूड कैटल डंग, ऑयल केक्स, वेजिटेबल वेस्ट एट्सेट्रा, जितने भी फूड वेस्ट होते हैं ना, प्लांट्स, फ्रूट्स, प्लांट डेड हो जाते हैं तो वो भी मिक्स हो जाता है, एनिमल्स डेड हो जाते हैं वो भी मिक्स हो जाते हैं, और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और भी ग्रेन्स हैं, ये सब क्या होता है, जब खराब हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो क्या होता है, डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज करते हैं नेचुरल प्रोसेस से, और क्या होता है, ये डीकम्पोज होने के बाद मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। सो दीज एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट आर डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। सो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगी होती है जो कि इनको डीकम्पोज करती रहती है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन of complex items into the simpler ones, simpler substances, और ताकि वो सॉइल में मिक्स हो जाए और सॉइल क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। So this decomposed matter is used as manure. It contains essential nutrients required by plants for their growth. और क्या क्या होता है इससे बेनिफिट, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। जब हम मैन्योर ऐड करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, किसकी, सॉइल की। और अगर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रूट्स बहुत अच्छे से प्लांट को क्या कर सकती है, वाटर सप्लाई कर सकती है। रिप्लेनिश ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। सो क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हुआ है, किसने किया, डीकम्पोजर्स ने, यानी बैक्टीरिया और फंगी ने। तो दीज आर फ्रेंड्स ऑफ सॉइल। तो डीकम्पोज करेंगे तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो मैन्योर में प्रेजेंट होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आगे भी तो डीकम्पोजिशन करना है ना उनको। Now fertilizers. So fertilizers, as I already told you, these are made in the factories by the chemicals. So rich in inorganic न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम ऑफ टू द सॉइल। सो सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, अमोनियम, ये सब फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, जिसको हम एक होता है NPK, N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K stands for potassium. So these are various types of fertilizers used by
फार्मर्स। तो ये सिंपल जाओ मार्केट से परचेज करो और उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दो इस तरीके से। Fertilizers help farmers to obtain a better yields of crop, but then why is the use of chemical fertilizers not encouraged? क्यों इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए? Because they have the number of disadvantages. क्या disadvantages हैं? These fertilizers can enter water bodies through runoff water and cause water pollution. तो ये क्या होता है, पानी के साथ बहकर हमारी वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं और क्या होता है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। The fertilizers and the water can also enter the body of humans through food and can be harmful for the human health. हमारी अगर बॉडी में ये एंटर हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। Excessive use of fertilizers can reduce the natural replenishing ability of soil. So natural तरीके से सॉइल अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाती है, वो कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक इट लेस फर्टाइल। तो बहुत ज़्यादा यूज हमें नहीं करना चाहिए फर्टिलाइजर्स का। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिसएडवांटेजेस हमारे मैन्योर के केस में नहीं है क्योंकि मैन्योर कंप्लीटली ऑर्गेनिक है और क्या है, फर्टिलाइजर्स कंप्लीटली इनऑर्गेनिक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ओनली, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, कौन, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ऑर्गेनिक और नेचुरल सब्सटेंस मेड फ्रॉम द डीकम्पोज्ड residue of plants and animal waste. Next point is they are manufactured in factories और ये कहाँ, नेचुरल तरीके से बनते हैं फील्ड्स में, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है मैन्योर्स को, और फर्टिलाइजर्स तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। सो दे डू नॉट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव नहीं करते हैं और ये ह्यूमस को ऐड करते हैं सॉइल में, सो टेक्सचर इम्प्रूव होता है। सो दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और ये क्या है, रिलेटिवली पुअर कंटेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। कंपैरिजन में फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, इनके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट कंपैरेटिवली फर्टिलाइजर्स के कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स बहुत हार्मफुल होते हैं। सेकेंड, एक और इनका डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर्स हमें थोड़ा ऐड करना पड़ता है स्मॉल क्वांटिटी में, और हमें मैन्योर एक लार्ज क्वांटिटी में सॉइल के साथ मिक्स करना पड़ता है, बट दीज आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक एंड गुड फॉर द सॉइल। ये फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इन्हांस करते हैं। सो डिस्पाइट द एडवांटेजेस, फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। दे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी इफ यूज्ड रेगुलरली, सो दे ऑल्सो कॉज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को इन्हेंस करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। As an alternative to fertilizers, nutrient in the soil can be replenished naturally by practicing various methods. अब एक तरीका तो हमने देखा सॉइल रिप्लेनिश करने का, क्या तरीका था, या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करें या मैन्योर ऐड करें। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर इज वेरी हार्मफुल फॉर अस और जो मैन्योर होते हैं दे आर गुड फॉर अस, दे आर ऑर्गेनिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इनके अंदर नहीं होते हैं। सो हम कुछ और मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करके सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो 3 डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेनली नेमली मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। सो ये मेथड्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, it allows farmers to grow 2 or more crops simultaneously in the same field in a definite pattern. इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा तरीके की क्रॉप्स एक पैटर्न में ग्रो की जाती है फील्ड में। एक फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या की जाएंगी,
पैटर्न में ग्रो की जाती है. दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर एंड चिली प्लांट्स आर ग्रोन टुगेदर इन ऑल्टरनेटिंग रोज. एक रो में चिली को ग्रो किया, दूसरी रो में हमने कॉलीफ्लावर ग्रो किया, फिर चिली ग्रो कर दिया, फिर कॉलीफ्लावर ग्रो कर दिया. इस तरह से ऑल्टरनेट रोज में इनको हम ग्रो करते हैं टू इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स applied. So crops are selected in such a way that their nutrients requirements are different. So दोनों जब हम क्रॉप सेलेक्ट करते हैं ग्रो करने के लिए इन द केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, तो एक पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न में इनको ग्रो किया जाता है और इस तरीके के कॉम्बिनेशन ग्रो किए जाते हैं ताकि दोनों क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो. ठीक है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से दोनों क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगे. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन भी एक मेथड है सॉइल को ऑटोमेटिकली क्या करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए. सो डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स. सो देयरफॉर टू रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, a new crop with different nutrient requirements instead of the same crop can be grown in the next season और ईयर. ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीके की क्रॉप बार बार ग्रो करते जा रहे हैं. सपोज हमने इस सीजन में एक टाइप की क्रॉप ग्रो करी, तो कुछ जब वो हार्वेस्ट हो जाए तो कोई डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर लो, उसके बाद कोई डिफरेंट क्रॉप को ग्रो कर लो, फिर दोबारा से सबसे फर्स्ट वाली क्रॉप कर. तो ये होता है क्रॉप रोटेशन, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? It allows two or more crops to be sowed simultaneously on the same land. एक लैंड है, एक फील्ड है, उसमें साथ साथ दो या दो से ज़्यादा तरीके की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. यहाँ पर भी करते हैं बट यहाँ पर पैटर्न है और ऑल्टरनेट, साथ साथ में नहीं. यहाँ पर क्या होता है, सीड्स को ही मिक्स कर देते हैं, सीड्स को मिक्स करके उनको सो कर देते हैं. सो व्हीट एंड ग्राम इसको ग्रो कर सकते हैं, व्हीट एंड मस्टर्ड को ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर के सीड्स जैसे मिक्स कर दिए और उनको सो कर दिया सीड्स को, तो दो क्रॉप्स एक साथ ग्रो होंगे. सो आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्योंकि इसमें कोई मेन डिफरेंस क्या है इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग में, कि इसमें अलग अलग रोज में ग्रो नहीं किया जाता, एक साथ ग्रो कर दिया जाता है. सीड्स को मिक्स कर दिया और मिक्स करके सीड्स को सो कर दिया. सो इन अ मिक्स्ड क्रॉपिंग क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स. मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी by maintaining microbial diversity. ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है. जैसे लेग्यूम्स होते हैं, आर ग्रोन इन वन सीजन. लेग्यूम्स को एक सीजन में ग्रो किया और उसके बाद फिर व्हीट को ग्रो कर दिया अगले सीजन में. और ऐसा क्यों? फिर उसके बाद में दोबारा से लेग्यूम्स को ग्रो किया जाता है. सो लेग्यूम्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है, दिस इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेकर उसको सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट प्लांट कैन यूज. क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन लेने से ही प्रोटीन बनता है. अगर नाइट्रोजन नहीं होगा प्लांट, तो उसमें सॉइल में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो वो सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगी और प्रोटीन नहीं बनेगा. राइट. सो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में. रूट्स में नोड्यूल्स होती है, जैसे ये रूट्स है, इसमें रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, इन नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि सॉइल जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर से, एटमॉस्फेयर से, और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सो दैट प्लांट कैन यूज. तो इसलिए क्रॉप रोटेशन या इन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इरिगेशन. ये भी एक मेथड है. अब हमने सीड्स को सो कर दिया, सीड सो करने के बाद क्या करना है, हमने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, अब हमें पानी भी तो देना है ना. सो वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, दिस इज कॉल्ड irrigation. So the process of watering of crops in the field at different time intervals, this is called irrigation.
इंडिया में फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन बिकॉज इट मे नॉट रेन व्हेन द क्रॉप्स रिक्वायर वाटर, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश होती है कहीं पर नहीं होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पानी तो देना ही पड़ेगा ना क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो हमें डिफरेंट मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो गेट फूड प्रोड्यूस क्रॉप्स नीड्स टू बी इरीगेटेड प्रॉपरली एट द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिफर फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स एंड सॉइल टू सॉइल। सो कितना पानी डालना है, कितनी बार डालना है, कब कब डालना है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, किसी क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी क्रॉप को पानी कम चाहिए होता है। सो टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, राइट। कितनी ज़्यादा ड्राई सॉइल है उसमें ज़्यादा पानी डलेगा, जिस सॉइल में मॉइस्चर है उसमें कम डलेगा। सो ये डिपेंड करता है, ये फार्मर्स को प्रैक्टिस के बाद उनको ये पता चल जाता है कि कितना इरिगेशन करना है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, रिवर्स, कनाल्स एंड डैम्स। तो हम इनसे वाटर लेते हैं और अपने फील्ड्स को या अपने क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। सो इरिगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स थ्रू कनाल्स, वेल्स एंड वाटरवेज। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज से हम वाटर्स कहाँ तक लेकर आते हैं, अपने फील्ड्स तक, अपने खेतों तक पानी लाते हैं और क्रॉप्स को वो पानी देते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड टू क्रॉप्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज एक्सेस वाटर कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। बहुत ज़्यादा पानी अगर हम खेतों में दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना पानी डालते जाइए, अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो भी प्लांट्स को डैमेज कर देता है। कैसे? क्योंकि जो पानी होता है, अगर पानी के अंदर सॉइल कम्प्लीटली डिप है, पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो पानी के अंदर एयर पैसेजेस हैं, जो जहाँ से हवा जा रही है, वो क्या होंगे, वो बंद हो जाएंगे और हवा नहीं मिल पाएगी रूट्स को और प्लांट क्या होगा, डेड हो जाएगा। So plants required frequent watering in summer as water from the soil and plant surface evaporate. So हमने पढ़ा था अपनी 6th-7th में कि ट्रांसपिरेशन होता रहता है प्लांट से, यानी कि वाटर जो है वो वेपर बनकर प्लांट से क्या होता रहता है, निकलता रहता है, ट्रांसपिरेशन कम होता रहता है प्लांट्स में। तो हमें पानी देना पड़ता है, समर्स में हमें ज़्यादा देना पड़ता है। हेंस वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। अब हम भी कब सर्वाइव करते हैं, जब हम फूड खाते हैं। हमें फूड बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है और एयर बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स को भी सेम, फूड भी चाहिए, पानी भी चाहिए और एयर भी चाहिए। But why is water important for plants? So seed require water to carry out the process of germination. In the absence of water, germination does not take place. Seed germinate ही नहीं होगा अगर पानी नहीं है। So seed is not able to germinate. अगर seed germinate नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन अ डिजॉल्व स्टेट। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के माध्यम से, ब्लड के मीडियम से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में क्या होता है, पानी की हेल्प से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करते हैं। सो देयरफॉर क्रॉप फील्ड्स नीड्स टू बी वाटर्ड रेगुलरली इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी क्रॉप्स। But how is irrigation carried out? So क्या क्या methods हैं? So we have different methods or different how to irrigate the crops. So traditional methods or modern methods again. So traditional methods में आता है ढेकली, इसमें एक वेल से इसमें एक बड़ा सा पत्थर इसके साथ बंधा होता है और एक साइड में इसमें क्या कराता है, एक कोई भी एक कंटेनर, बाल्टी या कुछ और बड़ा सा उसमें बांधा हुआ होता है। ये पत्थर नीचे होता है तो पानी भर के ऊपर आ जाता है। सो ये ट्रेडिशनल मेथड है बट टाइम टेकिंग है। इसके अलावा चेन पंप है, तो ये क्या होता है, पानी के साथ अटैच होता है, जैसे जैसे ये रोल होता है व्हील के साथ
और ये क्या होता है, ये पानी आता है और एक जगह पानी उल्टा होता रहता है और वही रास्ते से पानी खेतों में चला जाता है। एक होता है पुली सिस्टम जिसको बोलते हैं मोत, और ये राहत है विच इज़ लिवर सिस्टम। सो दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स, और ट्रेडिशनल मेथड्स में बहुत टाइम टेकिंग होता है और अनइवन वाटर सप्लाई होता है। अनइवन का मतलब पानी जा रहा है, जो स्टार्टिंग में प्लांट्स हैं, जो स्टार्टिंग में सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा पानी मिलता रहता है, और जो बहुत लास्ट तक या दूर तक की सॉइल है वहाँ तक पानी देर से पहुँचता है। तो अनइवन वाटर सप्लाई और बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज भी होता है इसमें। अब ट्रेडिशनल मेथड में जो वाटर वेस्टेज है वो ज़्यादा होता है, और इसकी जगह अब आए हैं मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों? जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो ये स्प्रिंकलर सिस्टम की फोटो है। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन स्ट्रेट लाइन में पाइप आता है, कुछ डिस्टेंस पर इसमें एक नोजल्स लगे होते हैं। नोजल से क्या होता है, नोजल्स में बहुत सारे होल्स होते हैं, और जो मेन पाइपलाइन होती है वो आपके मेन वाटर बॉडी से कनेक्टेड होती है, जैसे ट्यूबवेल से कनेक्टेड है या ट्यूबवेल से है, या आपके वाटर बड़े बड़े टैंक से कनेक्टेड है। तो जब पानी का सप्लाई होता है ट्यूब में, तो ये स्प्रिंकलर से पानी जो है स्प्रिंकल होता है क्रॉप्स के ऊपर। तो इसमें वाटर वेस्टेज कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल मेथड के कम होती है। सो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल परपेंडिकुलर पाइप्स विच हैव अ कोटिंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन इट्स टॉप। सो ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नोजल। तो ये रोटेट करता है और इसमें से पानी प्रेशर से क्या होता है, बाहर निकलता है और स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप्स पर, राइट। सो दीज पाइप्स आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। वाटर इन दीज pipelines flow at high pressure and get sprinkled on crops. This method is useful in irrigating sandy soil. So ये sandy soil के लिए ज़्यादा beneficial है। Next method है drip system. So drip system में भी ऐसे perpendicular pipes होते हैं। इन pipes के अंदर, यहाँ तो nozzles attached होते हैं, इन pipes के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है, holes होते हैं, और उन holes से जो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट में जाता रहता है। तो वाटर वेस्टेज भी कम होती है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सो इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द पोजीशन ऑफ रूट्स, राइट। यहाँ पर जैसे ये लेट्स से ये एक होल है, सो इससे क्या होगा, यहाँ प्लांट में रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर। सो इस मेथड में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्लांट की डायरेक्ट रूट में जाता है, सो वाटर वेस्टेज बहुत कम होता है। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटर ऑफ प्लांट्स as it prevents wastage of water. So you have seen that water is necessary for plant growth, but what will happen if excessive water is supplied to the plant? अगर बहुत ज़्यादा पानी हम सप्लाई करते हैं प्लांट्स को तो क्या होगा, we have already discussed. So let's read this. Excess water reduce the supply of air in the soil spaces. So this cause the death of roots due to the lack of ऑक्सीजन। तो एयर होल्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है। समटाइम्स क्रॉप्स गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटीज। बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हेल स्टॉर्म हो गए, तो इसकी सबकी वजह से स्टॉर्म आ गए। ये सब किस पे इफ़ेक्ट करती है, क्रॉप्स पर इफ़ेक्ट करती है और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो अनटाइमली रेन्स, हेल स्टॉर्म्स, तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट आता है और डैमेज हो जाती है। सो वाटर लॉगिंग यानी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होना, अगेन क्या करता है, प्लांट को डेड कर देता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप ग्रो हो गई है, हमने सॉइल प्रिपेयर करी, सीड सो किए, इरिगेशन किया, हमने फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को ऐड किया, अब क्रॉप ग्रो हो गई है। अब ग्रो होने के बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी इसका पार्ट है। सो क्रॉप प्रोटेक्शन में जैसे स्केयर क्रॉस, ये पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें इस तरीके का आपने बहुत बार फील्ड्स में देखा होगा। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स प्लेस्ड इन द फील्ड्स दैट कैन हेल्प बर्ड्स अवे फ्रॉम द
फील्ड। सो बर्ड्स को ऐसा लगता है कि जैसे कोई फील्ड में खड़ा हुआ है और वो बर्ड्स क्या करती हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, वहाँ नहीं आती हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर। जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स अटैक जो करते हैं हमारी क्रॉप्स पर, तो वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर पाते हैं। सो आफ्टर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डैमेज बाय pests like insects and rodents, microbes and fungi. For this purpose, chemical substance known as pesticides are used, or pesticides are poisonous in nature. They kill pests but do not harm प्लांट्स। तो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, ये पेस्ट को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स को हार्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वीडिंग। वीडिंग मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, इसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये क्या यूटिलाइज करते हैं या क्या क्या लेते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। वीड्स वाटर भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, और हमारे लिए पॉइजनस भी हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो क्या होता है, इन वीड्स को भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ए वीडीसाइड्स बोलते हैं। सो कुछ कॉमन वीडीसाइड्स हैं, कॉर्न कॉकल, एग्रोस्टेमा, ऑक्जेलिस, प्लांटागो एटसेट्रा, ये सब कॉमन वीडीसाइड्स हैं जो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द fields, right? Next is process of weeding and its importance. So weeding यानी कि weeds को remove करना। तो किस तरीके से remove कर सकते हैं? Weeds compete with crops for nutrients, water and space, thus they reduce the crop yield. अब एक फील्ड में हम बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, मैन्योर ऐड कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रो क्या कर रहा है, वीड्स ग्रो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल है। सो दे कैन इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एज वेल। अगर ये ग्रो हो जाते हैं और जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, यानी क्रॉप को हम काटते हैं, तो वीड्स भी कटते हैं, एंड वीड्स आर पॉइजनस, तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हार्वेस्टिंग में भी ये कट जाते हैं। सो सम वीड्स कैन बी पॉइजनस टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, तो इसलिए इनको ग्रो ही नहीं करने देना चाहिए। सो वीड नीड्स टू बी रिमूव्ड at regular interval, otherwise crop yield is badly affected. It can be done by the following ways. कैसे कर सकते हैं? By tilting before sowing. So जब हम soil prepare करते हैं, soil preparation चल रहा होता है, हम plowing करते हैं, plowing के टाइम पर क्या होता है, soil tilling होता है। soil tilling के टाइम पर जो छोटे छोटे weeds होते हैं वो क्या होते हैं, वो remove हो जाते हैं। However, it must be ensured that seeds of weeds are not mixed up with the क्रॉप प्लांट। जब हम इनको रिमूव करें तो हमें इनको अलग ही रखना चाहिए, ताकि ये हमारी क्रॉप्स के सीड्स के साथ मिक्स ना हो। नेक्स्ट इज वीड्स कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग और बाय कटिंग देयर शूट्स। या तो हम उनको उखाड़ लें, अपरूट कर लें, या फिर उनको कट कर दें, उनकी शूट्स को कट कर दें। सो क्लोज टू द ग्राउंड विच हेल्प ऑफ अ खुरपी और हैरो। खुरपी की हेल्प से हम उनको अलग कर सकते हैं, बट ये अगेन मैनुअल प्रोसेस है, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। सो वीड कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, जिनके हमने अभी एग्जाम्पल्स देखे। सो वीडीसाइड्स कैन सर्टेन केमिकल्स विच आर स्प्रेड इन क्रॉप फील्ड्स टू किल वीड्स। सो वीडीसाइड्स को स्प्रे कर दिया जाता है। सो दीज केमिकल्स डू नॉट कॉज एनी डैमेज टू द क्रॉप्स। सो वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D, ये वीडीसाइड का नाम है जो कि वीड्स को किल करने के लिए यूज होता है। एज डाइल्यूटेड इन वाटर, डाइल्यूट इन वाटर यानी कि कुछ पार्ट हम केमिकल के लेंगे, उसमें सेम क्वांटिटी में वाटर ऐड कर देंगे, सो ये वीडीसाइड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। एंड स्प्रेड ऑन फील्ड यूजिंग अ स्प्रेयर। They are sprayed during the vegetative growth phase of the weeds which occur before flowering and seed formation. तो हमें स्टार्टिंग में जब हमें इसको स्प्रे कर देना चाहिए, so that weeds क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाएं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीडीसाइड्स।
वीडीसाइड्स हार्मफुल होते हैं. क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? सो स्प्रेइंग वीडीसाइड्स कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स एंड फार्म एनिमल्स. सो देयरफॉर फार्मर्स शुड टेक precautions while spraying weedicides on the crops. For example, they should cover their mouth and nose while using वीडीसाइड्स. जब वो वीडीसाइड स्प्रे करें तो फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है सो दैट दे क्लोज देयर माउथ नोज विद इट्स हैंकरचीफ और अ क्लोथ. अच्छे से कवर करें और देन उसको स्प्रे करें. नाउ हार्वेस्टिंग. अब क्रॉप्स ग्रो हो गई हैं, अब उनको काटना ज़रूरी है. सो काटना, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. सो द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड, this is called harvesting. Different crops have different maturing time. Maturing time means कि वो completely grown है, अब हम उनको harvest कर सकते हैं. तो हर crop का different maturing time है. So they yield at different times. For example, paddy or wheat takes a few months. गेहूँ और चावल को कुछ महीने लगते हैं. Whereas sugar cane, इसको कितना लगता है? इसको 2 से 3 साल लगते हैं ग्रो होने में. सो ग्रेन्स ऑब्टेन आफ्टर हार्वेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूस. ये हमने अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर भी पढ़ा था कि प्लांट से हमें जो फूड मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द क्रॉप यील्ड. सो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्रॉप यील्ड जो होगा वो इंक्रीज होगा. सो हार्वेस्टिंग मेथड्स, सो मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल्स. अब क्रॉप्स को आपने हार्वेस्ट करना है तो कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट्स तो चाहिए, जैसे सिकल की हेल्प से हम मैनुअली क्रॉप्स को ग्राउंड के पास से बिल्कुल ऐसे काटते जाते हैं. नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड विच इज ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन. तो ट्रैक्टर्स के साथ हार्वेस्टर्स लगा दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं. सो कॉल्ड हार्वेस्टर्स इन द केस ऑफ व्हीट एंड पैडी. नेक्स्ट इज प्लकिंग इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो फ्रूट और वेजिटेबल्स को हमेशा प्लक किया जाता है, उन्हें हार्वेस्ट, यानी कि उनको ऐसा नहीं कि हार्वेस्टर की हेल्प से पूरा का पूरा पौधा उखड़ जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट अलग हो जाएगा, ट्री अलग हो जाएगा. हमें वो नहीं करना. हमें प्लांट्स से क्या करना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्लक करना है. सो प्लकिंग इज अनदर मेथड. आफ्टर दैट थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के ऊपर की जो कोटिंग होती है उसमें से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. आपने क्लास 6 में थ्रेशिंग, विनोइंग, ये प्रोसेसेस डिटेल में पढ़े थे. सो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स from the chaff. So threshing can be done by using machine called combine. So combine की help से, threshers की help से क्या करते हैं? grains को chaff से separate किया जाता है. So farmers having a small piece of land use methods of winnowing to separate grains from the chaff. So अगर ज़्यादा crop नहीं है, ज़्यादा बड़ा field नहीं है, बहुत ज़्यादा crop नहीं है, तो हम विनोइंग का प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं. अदरवाइज हमें थ्रेशर्स को यूज करना पड़ता है. कंबाइंस परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग साइमल्टेनियसली. दे वर्क वेरी एफिशिएंटली बट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ फॉडर इन द केस ऑफ व्हीट. राइट. सो थ्रेशर्स आते हैं कि दोनों काम एक साथ करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं और थ्रेशिंग भी एक साथ करते हैं. सो फार्मर बर्न्स डाउन द रिमेनिंग crop or straw in the field after harvesting. So this causes pollution and damages this crop in the field. Hence such practice should be avoided, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पराली जलाना. So पराली जलाना क्या होता है? जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो कुछ स्ट्रॉज, कुछ पार्ट जो प्लांट का जो सॉइल में रह जाता है उसको क्या करते हैं फार्मर्स? उसको जला देते हैं. तो जलाने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है. सो फार्मर्स शुड नॉट implement this practice, should not follow this practice. Now grains are with us. आप हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हमें क्या करना है? स्टोर करना है और फिर उसके बाद वो मार्केट में जाएगा. So once harvested, food grains to be safely stored, so they have to be saved from being attacked and eaten up by the rodents, birds or
insects. They have to be protected from spoilage due to improper temperature and moisture in the storage place or due to the growth of fungi. तो कैसे ग्रेन्स बहुत सारे तरीकों से स्पॉइल हो सकते हैं, कैसे, या तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स ये अटैक करते हैं, ये ग्रेन्स को स्पॉइल करते हैं. अदरवाइज जिस रूम में ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, सपोज वहाँ मॉइस्चर है तो वहाँ फंगस लग जाती है, वो स्पॉइल कर देते हैं सारे ग्रेन्स को. तो अगर हम प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, ये सारे ग्रेन्स स्पॉइल हो सकते हैं. तो इनको प्रॉपर स्टोर करना भी आना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप इज ड्राइंग. सबसे पहले ग्रेन्स को सनलाइट में अच्छे से ड्राई करना चाहिए. अच्छे से ड्राई करेंगे तो मॉइस्चर जो है वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा. आफ्टर दैट मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स. सो अब हमें क्या करना है, उन ग्रेन्स को किसी बैग में स्टोर करना है. मीन्स किसी चीज़ में फिल करके और फिर उन बैग्स को हमें स्टोर रूम में रखना है. सो गोडाउन्स और गनी बैग्स और टैंक्स और अर्दन पॉट्स यूज्ड टू स्टोरेज शुड बी फ्री ऑफ क्रैक्स एंड होल्स एंड शुड बी क्लीन. सो जहाँ पर भी हम ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं वो जो कंटेनर्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए, एंड देन वी कैन स्टोर. आफ्टर दैट केमिकल ट्रीटमेंट. सो स्प्रेइंग और फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन मीन्स फ्यूम्स की फॉर्म में केमिकल को स्प्रे किया जाता है स्टोर रूम में, ताकि वहाँ पर मॉइस्चर है उसकी वजह से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, इंसेक्ट्स छोटे से. सो इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू फ्यूम्स of godowns and containers with insecticides and fungicide should be done before storage. स्टोर करने से पहले हमें स्टोर रूम को क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड से, फ्यूमिनेशन प्रोसेस से हमें क्या करना चाहिए, उसको इंसेक्ट फ्री करना चाहिए. केयर शुड बी टेकन to ascertain that the grains for consumption by human beings are not treated with chemicals poisonous or human beings, right? So grains are often treated with neem kernel powder or pepper or mineral oil which prevents the laying of eggs by insect or पेस्ट. सो एक स्टोर रूम है जहाँ पर गनी बैग्स को स्टोर किया गया है. ये फ्रूट ग्रैनरीज होती हैं और कोल्ड स्टोरेज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो आप इन फॉर्म्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, उनको हम कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर करते हैं. नाउ यूज ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर. आजकल न्यू मेथड्स चल रहे हैं जिनको हम साइलोज बोलते हैं. इन साइलोज में स्ट्रक्चर्स दैट आर एयर टाइट, इसके अंदर हवा नहीं जाती है, हवा नहीं जाएगी तो मॉइस्चर एंटर नहीं करेगा. ये रैट प्रूफ होते हैं, मॉइस्चर प्रूफ होते हैं, एंड कैन मेंटेन अ steady temperature for now used for storage, and few of them are named as Pusa bin, Pusa cubicle and Pusa kotha. The figure shows a type of storage structure of silos. So ये साइलोज के स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्रेन्स को फिल कर दिया जाता है. तो इसके ये एयर टाइट कंटेनर होते हैं, इनके अंदर मॉइस्चर एंटर नहीं होता और इंसेक्ट्स भी इसके अंदर एंटर नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर विच इज एनिमल हस्बेंड्री. The branch of science that deals with the study of various breed of domesticated animals and their management for obtaining better products and services from them. This is called animal husbandry. और basically husbandry जो name है वो husband से लिया गया है, who takes care, right? So means person who takes care. तो animal husbandry यानी हम animals को domesticate करते हैं, हम उनको take care करते हैं, उनके लिए food and shelter provide करते हैं, उनको अगर वो बीमार होते हैं तो उनको medicines भी देते हैं. So this is called animal husbandry. So milk giving animals like cows, buffaloes and goats who gives us milk. तो हम क्या करते हैं,
मिल्क गिविंग एनिमल्स को रेयर करते हैं. देन मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स, बिकॉज वी गेट मीट एंड एग फ्रॉम द एनिमल्स लाइक गोट, शीप, पिग्स, कैटल, फाउल्स एंड डक्स, जो कि हमारे मेन सोर्सेज हैं. इसके अलावा वर्किंग एनिमल्स, और इनको हम बोलते हैं ड्रॉथ एनिमल्स. सो बुलक, बफलोज, कैमल्स, हॉर्सेस, दीज आर ड्रॉथ एनिमल्स जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारा वेट लिफ्ट करते हैं. सो इन द फील्ड और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स and human beings like mules are also used especially by the army to take things from one place to another place on hilly areas, in the hilly areas. तो हम animals को rear करते हैं, उनको take care करते हैं. So this is called animal husbandry. Now need of animal husbandry. क्यों जरूरी है animal husbandry? We have a large number of animals in our country, yet we do not get as much as food from these animals as we possibly can and need for our large population. हमारी population, क्योंकि हम जो food obtain करते हैं, either we are obtaining the food from plants or from animals. तो population बहुत ज़्यादा है, तो plants से भी हमें food चाहिए और animals से भी हमें food चाहिए. So इसलिए animal husbandry is also important. Besides the food which we get from animals, we need them to do a lot of work for us. क्या क्या काम करते हैं? You all know that cattle waste like urine and feces are natural manure that enriches our soil. So animals के जो feces होते हैं, जो उनका urine होता है, वो क्या होता है? वो किस लिए यूज होता है? वो सॉइल को नरिश करता है. अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डू नॉट यूज ऑल द काउज डंग्स अवेलेबल एंड लॉट ऑफ इट गोज वेस्ट. सो बहुत सारा जो यूरिन है और जो फेसेस है वो वेस्ट हो जाते हैं, हम कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते हैं. सो गोबर गैस प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ कैटल डंग both for fuel as well as to make manure. तो क्या बनाए गए हैं? गोबर गैस प्लांट्स बनाए गए हैं जहाँ पर गैस भी प्रोड्यूस होती है और जो उसके बाद वेस्ट बचता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है. Thus we find the animal husbandry is very important field that help us to improve our livestock and other useful animals. Now we have new words. So words we have already done like agriculture. ये क्या है? ये branch of science है जो कि that study of cultivation of plants useful to human beings. तो continuous study होती है इसमें. Horticulture ये भी agriculture की एक branch है जो कि study of the cultivation of vegetables, fruits and ornamental plants. So इनको बोलते हैं horticulture. Tilling क्या है? Plowing of land and preparing it for plantation. Soil preparation के टाइम पर जो हम soil को plow करते हैं उसको बोलते हैं. उसमें soil क्या होती है? नीचे वाली soil ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली soil नीचे आ जाती है. तो this is called tilling. Now sowing, the planting of selected seeds in the soil. Good quality of seeds को sow करना कहाँ? Soil में. Now irrigation. Irrigation means watering the crops in field. Weed. Weed क्या है? Weed an unwanted plant that grows naturally in the fields. ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और कुछ तो बहुत harmful भी होते हैं क्योंकि poisonous होते हैं. Harvesting. Crop grow होने के बाद उसको काटना. This is called harvesting. Now threshing. Threshing is the separation of grain from the chaff. This is called threshing. Now move to the summary. We have points written here. Let's read these points. All living things require food to stay alive. सबको जीने के लिए, survival के लिए क्या जरूरी है? Correct. Food. The branch of the science that deals with food production methods, these are known as agriculture. When the same type of plant is grown throughout the field, this is called crop. एक तरीके की crop, एक तरीके के plant बहुत बड़े एरिया में एक साथ ग्रो करना, दिस इज कॉल्ड क्रॉप.
Rabi crops includes crops like wheat, gram, pea, mustard, etc. और राबी क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो की जाती है? विंटर सीजन में, क्योंकि इनको पानी की जरूरत कम होती है. नाउ प्लोइंग इज टिलिंग द लैंड विद द हेल्प ऑफ प्लो. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज खारिफ क्रॉप्स. जैसे एग्जांपल्स हैं राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स. और ये कब ग्रो होते हैं? रेनी सीजन में, बिकॉज दीज प्लांट्स नीड मोर वाटर. वाटर लॉगिंग क्या कर सकते हैं? प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि एयर स्पेसेस जो होती हैं सॉइल में वो ब्लॉक हो जाती हैं. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स. सो फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स टू ऑब्टेन अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स. फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स देते हैं किसको? सॉइल को. Pig, cattle, goat, sheep, fowl and ducks are the main sources of wheat. So animal husbandry जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हम एनिमल्स को क्या करते हैं? एनिमल्स को रेयर, कैटल रेयरिंग होती है, एनिमल्स को हम टेक केयर करते हैं एंड वी ऑब्टेन एनिमल फूड फ्रॉम देम. नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. First statement is the branch of science that deals with the study of plants grown for commercial purpose, and this is called what? Horticulture. A. So this box needs to be selected. Horticulture. A field is plowed to. So field किससे प्लॉट किया जाता है और किस लिए प्लो किया जाता है? मेक द सॉइल सॉफ्ट. यस, प्लो करने से सॉइल क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है. एरिएट द सॉइल. सॉइल के अंदर एयर एंटर करती है. ओवरटर्न द सॉइल. नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की सॉइल नीचे, यानी कि टिलिंग. एंड ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. Next is the process of planting plants at the proper depth and distance. So हम plants को plant कर रहे हैं. We are not sowing the seeds. So this is called transplantation. Next is the process that helps to maintain soil fertility. So किस process से soil की fertility maintain होती है या enhance होती है? It is manuring. Irrigation क्या होता है? Watering of plants. Plowing क्या होता है? Soil को tilling करना. और हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना यानी कट करना. सो करेक्ट ऑप्शन इज मैन्योरिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. So first fill up we have the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at place, and this is called crop. Next is the first step before growing crop. This is called preparation of soil. Third one, damaged seeds would float on the surface of water. So जो seeds खराब होते हैं वो क्या होता है? पानी के ऊपर float करते हैं. For growing a crop, sufficient amount of sunlight, water and nutrient from the soil are essential. And the last one, paddy and maize are the kinds of kharif crop. Next type of question which is true and false. First statement, human beings depend on plants and animals. So this is true. When the same type of plant is grown throughout the field, this is called cash crop. ये normal crop होती है, cash crop होती है for commercial purpose. So this statement is false. Next statement, dead plants and animals parts are decomposed by soil organisms. This is correct. Next is the main part of plowshare is made up of steel. This is false. It is made up with wood. Transplantation is a process that involves the planting of seeds into the soil. This is false, क्योंकि इसमें सीडलिंग्स यानी जो छोटा सा प्लांट ग्रो होता है सीड से, उसको नर्सरी से हटाकर फील्ड में प्लांट किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. So that's it children for this chapter, crop management. We will meet in the next class of science. Till then, stay connected. Bye children.